Hello, before you get lost in the story, subscribe to the channel and turn on notifications. Thank you. Julius Caesar Audiobooks 108 Making Shakespeare Easy and Accessible. Page -63 Act 5. Scene 1. The plains of Philippi. Enter Octavius, Antony, and their army. Octavius, now, Antony, our hopes are answered. You said the enemy would not come down, but keep the hills and upper regions. It proves not so. Their battles are at hand. They mean to warn us at Philippi here, answering before we do demand of them. Antony, tut, I am in their bosoms, and I know wherefore they do it. They could be content to visit other places, and come down with fearful bravery, thinking by this face to fasten inner thoughts that they have courage. But 'tis not so. Enter a messenger, prepare you, generals, the enemy comes on in gallant show, their bloody sign of battle is hung out, and something to be done immediately. Antony, Octavius, lead your battle softly on, upon the left hand of the even field. Octavius, upon the right hand I, keep thou the left. Antony, why do you cross me in this exigent? Octavius, I do not cross you, but I will do so. March drum. Enter Brutus, Cassius, and their army, Lucilius, Titinius, Messala and others. Brutus, they stand, and would have parley. Cassius, stand fast. Titinius, we must out and talk. Octavius, mark Antony, shall we give sign of battle? Antony, no, Caesar, we will answer on their charge. Make forth, the generals would have some words. Octavius, stir not until the signal. Brutus, words before blows, is it so, countrymen? Page 64 Octavius, not that we love words better, as you do. Brutus, good words are better than bad strokes. Octavius. Antony, in your bad strokes, Brutus, you give good words, witness the hole you made in Caesar's heart, crying, long live. Hail, Caesar. Cassius, Antony, the posture of your blows are yet unknown, but for your words, they rob the Hybla bees, and leave them honeyless. Antony, not stingless too. Brutus, Joro, yes, and soundless too, for you have stolen their buzzing, Antony, and very wisely thread before your sting. Antony, villains, you did not so, when your wild daggers hacked one another in the sides of Caesar. You showed your teeth like apes, and fawned like hounds, and bowed like bondmen, kissing Caesar's feet, whilst damned Cass, like a cur, behind struck Caesar on the neck. O you flatterers! Cassius, flatterers! Now, Brutus, thank yourself, this tongue had not offended so today, if Cassius might have rued. Octavius, come, the cause, if arguing make us sweat, the proof of it will turn to redder drops. Look, I draw a sword against conspirators. When think you that the sword goes up again? Never, till Caesar's 33 wounds be well avenged, or till another Caesar have added slaughter to the sword of traitors. Brutus, Caesar, thou canst not die by traitors' hands, unless thou bringest them with thee. Octavius, so I hope, I was not born to die on Brutus' sword. Brutus, oh, if thou wert the noblest of thy strain, young man, thou couldst not die more honorable. Cassius, a peevish schoolboy, worthless of such honor, joined with a masker and a reveler. Page 65 Antony, old Cassius still. Octavius, come, Antony, away. Defiance, traitors, hurl we in your teeth, if you dare fight today, come to the field, if not, when you have stomachs. Exeunt Octavius, Antony, and their army. Cassius, why, now, blow wind, swell below and swim back. The storm is up, and all is on the hazard. Brutus, ho, Lucilius. Hark, a word with you. Lucilius, standing forth, my lord. Brutus and Lucilius converse apart. Cassius, Messala. Messala, standing forth, what says my general? Cassius, Messala, this is my birthday. As this very day was Cassius born. Give me thy hand, Messala, be thou my witness that against my will, as Pompey was, am I compelled to set upon one battle all our liberties. You know that I held Epicurus strong and his opinion. Now I change my mind, and partly credit things that do presage.
Coming from Sardes, on our former ensign 2 mighty eagles fell, and there they pucked, gorging and feeding from our soldiers' hands, who to Philippi here consorted us. This morning are they fled away and gone, and in their steads do ravens, crows and kites, fly o'er our heads and downward look on us, as we were sickly prey. Their shadows seem a canopy most fatal, under which our army lies, ready to give up the ghost. Messala, believe not so. Cassius, I but believe it partly, for I am fresh of spirit and resolved to meet all perils very constantly. Brutus, even so. Lucilius. Page 66. Cassius, now, most noble Brutus, the gods today stand friendly, that we may, lovers in peace, lead on our days to age. But since the affairs of men rest still uncertain, let's reason with the worst that may befall. If we do lose this battle, then is this the very last time we shall speak together. What are you then determined to do? Brutus, even by the rule of that philosophy by which I did blame Cato for the death which he did give himself, I know not how, but I do find it cowardly and vile, for fear of what might fall, so to prevent the time of life, arming myself with patience to stay the providence of some high powers that govern us below. Cassius, then, if we lose this battle, you are contented to be led in triumph through the streets of Rome. Brutus, no. Cassius, no. Think not, thou noble Roman, that ever Brutus will go bound to Rome, he bears too great a mind. But this same day must end that work the Ides of March begun, and whether we shall meet again I know not. Therefore our everlasting farewell take, forever, and forever, farewell Cassius. If we do meet again, why, we shall smile, if not, why then, this parting was well made. Cassius, forever, and forever, farewell Brutus. If we do meet again, we'll smile indeed, if not, 'tis true this parting was well made. Brutus, why, then, lead on. Oh, that a man might know the end of this day's business ere it come. But it sufficeth that the day will end, and then the end is known. Come, ho, away. Exeunt scene, -2. The same. The field of battle. Alarum. Enter Brutus and Messala. Brutus. Ride, Messala, ride, and give these bills unto the legions on the other side. Loud alarum, let them set on at once, for I perceive but cold demeanor in Octavius' wing, and sudden push gives them the overthrow. Ride, Messala, let them all come down. Exeunt page 67. Scene 3. Another part of the field. Alarums. Enter Cassius and Titinius. Cassius, oh, look, Titinius, look, the villains fly. Myself have to mine own turned enemy. This ensign here of mine was turning back, I slew the coward, and did take it from him. Titinius, oh Cassius, Brutus gave the word too early, who, having some advantage on Octavius, took it too eagerly. His soldiers fell to spoil, whilst we by Antony are all enclosed. Enter Pindarus. Pindarus, fly further off, my lord, fly further off. Mark Antony is in your tents, my lord, fly, therefore, noble Cassius, fly far off. Cassius, this hill is far enough. Look, Titinius, are those my tents where I perceive the fire? Titinius, they are, my lord. Cassius, Titinius, if thou lovest me, mount thou my horse, and hide thy spurs in him, till he have brought thee up to yonder troops, and here again, that I may rest assured whether yon troops are friend or enemy. Titinius, I will be here again, even with a thought. Exit Cassius. Go, Pindarus, get higher on that hill. My sight was ever thick, regard Titinius, and tell me what thou notest about the field. Pindarus ascends the hill this day I breathed first, time is come round, and where I did begin, there shall I end, my life is run his compass. Sirrah, what news? Pindarus, above, O my lord. Cassius, what news? Page 68. Pindarus, above, Titinius is enclosed round about with horsemen that make to him on the spur, yet he spurs on. Now they are almost on him. Now, Titinius. Now some light. Oh, he lights too. He's ta'en. Shout and, hark. They shout for joy. Cassius, come down, behold no more. Oh coward that I am, to live so long, to see my best friend ta'en before my face. Pindarus descends, come hither, sirrah.
In Parthia did I take thee prisoner, and then I swore thee, saving of thy life, that whatsoever I did bid thee do, thou shouldst attempt it. Come now, keep thine oath, now be a freeman, and with this good sword, that ran through Caesar's bowels, search this bosom. Stand not to answer. Here, take thou the hilts, and, when my face is covered, as 'tis now, guide thou the sword. Pindarus stabs him, Caesar, thou art revenged, even with the sword that killed thee. Dies Pindarus, so, I am free, yet would not so have been, durst I have done my will. O Cassius, far from this country Pindarus shall run, where never Roman shall take note of him. Exit re-enter Titinius with Messala. Messala, it is but changed Titinius, for Octavius is overthrown by noble Brutus' power, as Cassius' legions are by Antony. Titinius, these tidings will well comfort Cassius. Messala, where did you leave him? Titinius, all disconsolate, with Pindarus his bondman, on this hill. Messala, is not that he hat lies upon the ground? Titinius, he lies not like the living. O my heart. Messala, is not that he? Page, -69 Titinius. No, this was he, Messala, but Cassius is no more. O setting sun, as in thy red rays thou dost sink to night, so in his red blood Cassius, day is set, the sun of Rome is set. Our day is gone, clouds, dews, and dangers come, our deeds are done. Mistrust of my success hath done this deed. Messala, mistrust of good success hath done this deed. O hateful error, melancholy's child, why dost thou show to the apt thoughts of men the things that are not? O error, soon conceived, thou never comest unto a happy birth, but kill'st the mother that engendered thee. Titinius, what, Pindarus? Where art thou, Pindarus? Messala, seek him, Titinius, whilst I go to meet the noble Brutus, thrusting this report into his ears, I may say, thrusting it, for piercing steel and darts and venom shall be as welcome to the ears of Brutus' tidings of this sight. Titinius, he you, Messala, and I will seek for Pindarus the while. Exit Messala. Why didst thou send me forth, brave Cassius? Did I not meet thy friends? And did not they put on my brows this wreath of victory, and bid me give it thee? Didst thou not hear their shouts? Alas, thou hast misconstrued everything. But, hold thee, take this garland on thy brow, thy Brutus bid me give it thee, and I will do his bidding. Brutus, come apace, and see how I regarded Caius Cassius. By your leave, gods, this is a Roman's part, come, Cassius' sword, and find Titinius' heart. Kills himself Alarum. Re-enter Messala, with Brutus, Cato, Strato, Volumnius, and Lucilius. Brutus, where, Messala, doth his body lie? Messala, lo, yonder, and Titinius mourning it. Brutus, Titinius, face as upward. Cato, he is slain. Page, Sattar Brutus, O Julius Caesar, thou art mighty yet. Thy spirit walks abroad and turns our swords in our own proper entrails. Lo Alarum's Cato, brave Titinius. Look, whether he have not crowned dead Cassius. Brutus, are yet two Romans living such as these. The last of all the Romans, fare thee well. It is impossible that ever Rome should breed thy fellow. Friends, I owe more tears to this dead man than you shall see me pay. I shall find time, Cassius, I shall find time. Come, therefore, and to Thessos send his body. His funerals shall not be in a camp, lest it discomfort us. Lucilius, come, young Cato, let us to the field. Labeo and Flavius, set our battles on, 'tis 3 o'clock, and, Romans, yet ere night we shall try fortune in a second fight. Exeunt scene, for another part of the field. Alarum. Enter fighting, soldiers of both armies, then Brutus, Cato, Lucilius, and others. Brutus, yet countrymen, oh, yet hold up your heads. Cato, what bastard doth not? Who will go with me? I will proclaim my name about the field, I am the son of Marcus Cato, ho. A for two tyrants, and my country's friend, I am the son of Marcus Cato, ho. Brutus, and I am Brutus Marcus Brutus, I, Brutus my country's friend, know me for Brutus.
Exit Lucilius, O young and noble Cato, art thou down? Why, now thou deest as bravely as Titinius, and mayst be honored, being Cato's son. First soldier, yield, or thou deest. Lucilius, only I yield to die. There is so much that thou wilt kill me straight, offering money kill Brutus, and be honored in his death. Page 71. First soldier, we must not. A noble prisoner. Second soldier, room ho. Tell Antony, Brutus is 10. First soldier, I'll tell the news. Here comes the general. Enter Antony, Brutus is 10, Brutus is 10, my lord. Antony, where's he? Lucilius, safe, Antony, Brutus is safe enough. I dare assure thee that no enemy shall ever take alive the noble Brutus, the gods defend him from so great a shame. When you do find him, or alive or dead, he will be found like Brutus, like himself. Antony, 6. This is not Brutus, friend, but, I assure you, a prize no less in worth. Keep this man safe, give him all kindness. I had rather have such men my friends than enemies. Go on, and see whether Brutus be alive or dead, and bring us word unto Octavius, tent how everything is chanced. Exeunt scene, Patch. Another part of the field. Enter Brutus, Dardanius, Clutus, Strato, and Volumnius. Brutus, come, poor remains of friends, rest on this rock. Clutus, Statilius shout the torchlight, but, my lord, he came not back, he is or ta'en or slain. Brutus, sit thee down. Clutus, slaying is the word, it is a deed in fashion. Hark thee, Clutus. Whispers Clutus, what? I, my lord. No, not for all the world. Brutus, peace then, no words. Clutus, I'll rather kill myself. Brutus, hark thee, Dardanius. Whispers Dardanius, shall I do such a deed? Page 72. Clutus, O Dardanius. Dardanius, O Clutus. Clutus, what ill request did Brutus make to thee? Dardanius, to kill him. Clutus, look, he meditates. Clutus, now is that noble vessel full of grief, that it runs over even at his eyes. Brutus, come hither, good Volumnius, list a word. Volumnius, what says my lord? Brutus, why, thus, Volumnius, the ghost of Caesar hath appeared to me too several times by night, at Sardis once, and, thus last night, here in Philippi fields. I know my hour is come. Volumnius, not so, my lord. Brutus, nay, I am sure it is, Volumnius. Thou sayest the world, Volumnius, how it goes, our enemies have beat us to the pit, lo alarums it is more worthy to leap in ourselves, than tarry till they push us. Good Volumnius, thou knowst that we two went to school together. Even for that our love of old, I prithee, hold thou my sword hilts, whilst I run on it. Volumnius, that's not an office for friend, my lord. Alarum still Clutus, fly, fly, my lord, there is no tarrying here. Brutus, farewell to you, and you, Volumnius. Strato, thou hast been all this while asleep, farewell to thee too. Strato, countrymen, my heart doth joy that yet in all my life I found no man but he was true to me. I shall have glory by this losing day more than Octavius and Mark Antony by this while conquest shall attain unto. So fare you well at once, for Brutus' tongue hath almost ended his life's history. Night hangs upon mine eyes. My bones would rest, that have but labored to attain this hour. Alarum, cry within, fly, fly, fly. Page 73. Clutus, fly, my lord, fly. Brutus, hence. I will follow. Exeunt Clutus, Dardanius, and Volumnius. I prithee, Strato, stay thou by thy lord. Thou art a fellow of a good respect. Thy life hath had some smatch of honor in it. Hold then my sword, and turn away thy face, while I do run upon it. Wilt thou, Strato, give me your hand first? Fare you well, my lord. Brutus, farewell, good Strato. Runs on his sword Caesar, now be still, I killed not thee with half so good a will. Dies Alarum. Retreat. Enter Octavius, Antony, Messala, Lucilius, and the army. Octavius, what man is that? Messala, my master's man. Strato, where is thy master?
Strato, free from the bondage you are in. Messala, the conquerors can but make a fire of him, for Brutus only overcame himself, and no man else hath honor by his death. Lucilius, so Brutus should be found. I thank thee, Brutus, that thou hast proved Lucilius, saying true. Octavius, all that served Brutus, I will entertain them. Fellow, wilt thou bestow thy time with me? Strato, I, if Messala will prefer me to you. Octavius, do so, good Messala. Messala, how died my master, Strato? Strato, I held the sword, and he did run on it. Messala, Octavius, then take him to follow thee, that did the latest service to my master. Antony, this was the noblest Roman of them all. All the conspirators save only he did that they did in envy of great Caesar. Page 74. He only, in a general honest thought and common good to all, made one of them. His life was gentle, and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man. Octavius, according to his virtue let us use him, with all respect and rites of burial. Within my tent his bones tonight shall lie, most like a soldier, ordered honorably. So call the field to rest, and let's away, to part the glories of this happy day. Exeunt. For more updates like this, please subscribe our channel Audiobooks 108 and enable notifications. Thanks. नमस्कार। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद। जूलियस सीजर ऑडियो बुक्स 108 शेक्सपियर को आसान और सुलभ बनाना। पृष्ठ -63 अधिनियम -5 दृश्य 1 फिलिप्पी के मैदान। ऑक्टेवियस दर्ज करें, एंटनी और उनकी सेना। ऑक्टेवियस, अब एंटनी, हमारी आशाओं का उत्तर मिल गया है। आपने कहा था कि शत्रु नीचे नहीं आएगा, परंतु पहाड़ियों और ऊपरी क्षेत्रों को रखो। यह ऐसा साबित नहीं करता। उनकी लड़ाइयां निकट हैं। उनका आशय यहाँ फिलिप्पी में हमें चेतावनी देना है। हम उनसे मांग करें, उससे पहले जवाब देना। एंटोनी, हाँ, मैं उनकी गोद में हूँ, और मुझे पता है वे ऐसा क्यों करते हैं। वे संतुष्ट हो सकते हैं अन्य स्थानों पर जाने के लिए, और नीचे आओ। भयावह वीरता के साथ, इस चेहरे से सोच रहा हूँ अपने विचारों में दृढ़ करना कि उनमें साहस है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक मैसेंजर दर्ज करें। मैसेंजर, आप तैयार रहें। जनरलों, शत्रु वीरता का प्रदर्शन करता है। उनकी लड़ाई का खूनी चिन्ह लटका हुआ है, और तुरंत कुछ करना होगा। एंटोनी, ऑक्टेवियस, अपनी लड़ाई को नरमी से आगे बढ़ाएं। सम क्षेत्र के बाएं हाथ पर। ऑक्टेवियस, दाहिने हाथ पर मैं, तुम बाईं ओर रहो। एंटोनी, तुम मुझे इस संकट में क्यों फंसाते हो? ऑक्टेवियस, मैं तुम्हें पार नहीं करता, लेकिन मैं ऐसा करूंगा। मार्च ढोल। ब्रूट्स दर्ज करें। कैसियस और उनकी सेना, ल्यूसिलियस, टिटिनियस, मेसाला और अन्य ब्रूट्स, वे खड़े हैं और बातचीत करेंगे। कैसियस, मजबूती से खड़े रहो। टिटिनियस, हमें बाहर निकलकर बात करनी चाहिए। ऑक्टेवियस, मार्क एंटनी, क्या हम युद्ध का संकेत देंगे? एंटोनी, नहीं। सीजर, हम उनके आरोप का उत्तर देंगे। आगे बढ़ाओ। जनरलों के पास कुछ शब्द होंगे। ऑक्टेवियस, सिग्नल मिलने तक हिलाए नहीं। ब्रूट्स, प्रहार से पहले के शब्द, क्या ऐसा है? देशवासियों। पेज 64। ऑक्टेवियस, ऐसा नहीं है कि हम शब्दों को आपकी तरह बेहतर पसंद करते हैं। ब्रूट्स, अच्छे शब्द बुरे स्ट्रोक से बेहतर होते हैं। ऑक्टेवियस। एंटोनी, अपने बुरे प्रहारों में, ब्रूट्स, तुम अच्छे शब्द देते हो। उस छेद का गवाह बनो जो तुमने सीजर के दिल में किया था। रोना, लंबे समय तक जीवित रहें। जय हो सीजर। कैसियस, एंटनी, तुम्हारे प्रहार की मुद्रा अभी तक अज्ञात है, लेकिन आपके शब्दों के लिए, वे हाइबला मधुमक्खियों को लूट लेते हैं और उन्हें शहद रहित छोड़ दें। एंटोनी, कंजूस भी नहीं। ब्रूट्स, जोड़ो। हाँ, और ध्वनिहीन भी, क्योंकि आपने उनकी गूंज को चुरा लिया है। एंटनी, और बहुत समझदारी से डंक मारने से पहले धमकी देना। एंटोनी, खलनायकों, तुमने ऐसा नहीं किया। जब तुम्हारे घृणित खंजर सीजर के पक्ष में एक दूसरे को हैक किया, तू अपने दांत वानर के समान दिखाता है, और हिरन का बच्चा शिकारी कुत्तों के समान दिखाता है, और दासों की नाई झुककर कैसर के पांव चूमते थे।
जबकि शापित कास्का एक वक्र की तरह पीछे सीज़र की गर्दन पर वार किया। हे चापलूस कैसियस, चापलूस, आप ब्रूट्स स्वयं को धन्यवाद दें, इस ज़बान ने आज इतना बुरा न किया था यदि कैसियस ने शासन किया होता। ऑक्टेवियस, आओ आओ, कारण अगर बहस करने से हमें पसीना आता है, इसका प्रमाण लाल बूंदों में बदल जाएगा। देखना, मैं षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध तलवार खींचता हूँ। तुम्हें कब लगता है कि तलवार फिर ऊपर उठ जाएगी? कभी नहीं। सीज़र के 33 घावों तक अच्छे से बदला लो, या किसी अन्य सीज़र तक गद्दारों की तलवार में वध जोड़ दिया है। ब्रूट्स, सीज़र, तुम गद्दारों के हाथों नहीं मर सकते जब तक आप उन्हें अपने साथ न लाएं। ऑक्टेवियस, इसलिए मुझे आशा है कि मैं ब्रूट्स की तलवार पर मरने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। ब्रूट्स, हे, यदि तू अपने तनाव में सबसे महान होता, नवयुवक, तुम इससे अधिक सम्मानपूर्वक नहीं मर सकते। कैसियस, एक चिड़चिड़े स्कूली छात्र, ऐसे सम्मान के लायक नहीं, एक नकाबपोश और एक मौज मस्ती करने वाले के साथ जुड़े। पेज 65 एंटोनी, पुराना कैसियस अभी भी। ऑक्टेवियस, आओ एंटनी, चले जाओ। अवज्ञा करने वालों, गद्दारों, हमें अपने दांतों तले चोट पहुंचाओ। यदि तुम में आज लड़ने का साहस है तो मैदान में आओ, यदि नहीं तो जब आपके पास पेट हो। एक्जींट ऑक्टेवियस, एंटनी और उनकी सेना कैसियस, क्यों? अब हवा चलाओ, लहरें उठाओ और छाल तैरो। तूफान बढ़ गया है और सब कुछ खतरे में है। ब्रूट्स हो, ल्यूसिलियस, हॉक, एक शब्द तुम्हारे साथ। ल्यूसिलियस, आगे खड़े होकर, हे प्रभु। ब्रूट्स और ल्यूसिलियस अलग अलग बातचीत करते हैं। कैसियस, मेसाला, मेसाला खड़ा है आगे, मेरे जनरल क्या कहते हैं? कैसियस, मेसाला, यह मेरा जन्मदिन है, इसी दिन के रूप में क्या कैसियस का जन्म हुआ था? मुझे अपना हाथ दो, मेसाला, तुम मेरे गवाह बनो कि मेरी इच्छा के विरुद्ध, जैसा कि पोम्पी था, क्या मैं सेट होने के लिए मजबूर हूँ एक ही लड़ाई में हमारी सारी स्वतंत्रताएं? आप जानते हैं कि मैंने एपिकुरस को मजबूती से पकड़ रखा था और उनकी राय, अब मैंने अपना मन बदल लिया है और आंशिक रूप से उन चीजों को श्रेय देते हैं जो भविष्यवाणी करती हैं। सार्डिस से आ रहे हैं। हमारे पूर्व ध्वज पर 2 शक्तिशाली उकाब गिरे और वे वहीं बैठ गए, हमारे सैनिकों के हाथों से खाना और खिलाना। यहाँ फिलिप्पी ने हमें किससे संबद्ध किया? आज सुबह वे भाग गए और चले गए और उनके स्थान पर कौवे, कौवे और पतंगे हमारे सिर के ऊपर से उड़ो और नीचे की ओर देखो, जैसे हम बीमार शिकार थे। उनकी छायाएं प्रतीत होती हैं एक छत्र सबसे घातक, जिसके नीचे हमारी सेना झूठ बोलती है, भूत को त्यागने के लिए तैयार है। मेसाला, विश्वास करें ऐसा नहीं है। कैसियस, मैं इस पर आंशिक रूप से विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं ताज़ा और दृढ़ निश्चयी हूँ सभी खतरों का लगातार सामना करना। ब्रूट्स, फिर भी। ल्यूसिलियस, पेज 66 कैसियस, आप सबसे महान ब्रूट्स आज देवता मित्रवत हैं, ताकि हम शांति से रहने वाले प्रेमी हमारे दिनों को उम्र की ओर ले जाते हैं। परंतु चूंकि मनुष्यों के मामले अभी भी अनिश्चित हैं, आइए उस सबसे बुरी स्थिति के बारे में तर्क करें जो घटित हो सकती है। यदि हम ये लड़ाई हार जाते हैं तो यही है आखिरी बार हम एक साथ बोलेंगे। फिर आपने क्या करने का निश्चय किया है? ब्रूट्स, उस दर्शन के नियम से भी जिससे मैंने मौत के लिए कैटो को दोषी ठहराया जो उसने स्वयं दिया। मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन मुझे ये कायरतापूर्ण और घृणित लगता है। डर है कि कहीं गिर न जाए, इसलिए रोकना है जीवन का समय, खुद को धैर्य से लैस करना कुछ उच्च शक्तियों का विधान बने रहने के लिए वह हमें नीचे नियंत्रित करता है। कैसियस, फिर अगर हम ये लड़ाई हार जाते हैं, आप विजय की ओर अग्रसर होकर संतुष्ट है रोम की पूरी सड़कें? ब्रूट्स, नहीं। कैसियस, नहीं, मत सोचो, तुम महान रोमन, वह कभी भी ब्रूट्स रोम के लिए बाध्य होगा, उसका दिमाग बहुत अच्छा है। लेकिन इसी दिन उस कार्य को समाप्त करना होगा जो मार्च के दिनों में शुरू हुआ था, और मैं नहीं जानता कि हम दोबारा मिलेंगे या नहीं। इसलिए हमारी चिरस्थायी विदाई, हमेशा के लिए और हमेशा के लिए, अलविदा कैसियस। फिर मिलेंगे तो क्यों मुस्कुराएंगे, यदि नहीं तो फिर क्यों? ये विदाई अच्छी तरह से की गई थी। कैसियस, हमेशा के लिए और हमेशा के लिए, अलविदा ब्रूट्स।
अगर हम दोबारा मिलेंगे तो सचमुच मुस्कुराएंगे, यदि नहीं तो ये सच है कि यह अलगाव अच्छी तरह से हुआ था। ब्रूट्स फिर आगे क्यों बढ़े? ओह, यह एक आदमी को पता चल सकता है इस दिन के कारोबार का अंत आ गया। लेकिन इतना ही काफी है कि दिन खत्म हो जाएगा और तब अंत का पता चलता है। आओ हो दूर कार्यकारी दृश्य -2 जो उसी युद्ध का मैदान। अलार्म ब्रूट्स दर्ज करें और मेसाला ब्रूट्स सवारी करो मेसाला सवारी करो और ये बिल दो दूसरी ओर के दिग्गजों तक। जोर से अलार्म उन्हें तुरंत चालू होने दो, क्योंकि मैं समझता हूँ, लेकिन ऑक्टेवियस के विंग में ठंडा आचरण और अचानक धक्का उन्हें उखाड़ फेंकता है। सवारी करो मेसाला, उन सभी को नीचे आने दो। कार्यकारी पेज -67 दृश्य -3 मैदान का दूसरा भाग। अलार्मस कैसियस दर्ज करें और टिटेनियस। कैसियस हे देखो टिटेनियस देखो खलनायक उड़ रहे हैं। मुझे अपने ही बदले हुए शत्रु को अपनाना होगा। इधर मेरी ये पताका पीछे मुड़ रही थी। मैंने काय को मार डाला और उससे ये ले लिया। टिटेनियस हे कैसियस, ब्रूट्स ने ये शब्द बहुत पहले ही दे दिया था। कौन? ऑक्टेवियस पर कुछ लाभ रखते हुए इसे बहुत उत्सुकता से लिया। उसके सैनिक लूटने के लिए गिर पड़े, जबकि हम एंटनी द्वारा सभी संलग्न हैं। पिंडारस दर्ज करें। पिंडारस और दूर तक उड़ो हे प्रभु, और भी दूर तक उड़ो। मार्क एंटनी आपके तंबू में है। मेरे प्रभु उड़ो, इसलिए महान कैसियस दूर तक उड़ो। कैसियस ये पहाड़ी काफी दूर है। देखो देखो टिटेनियस, क्या वे मेरे तंबू हैं जहां मुझे आग लगती है? टिटेनियस वे हैं मेरे प्रभु। कैसियस टिटेनियस, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, मेरे घोड़े पर चढ़ो और उसमें अपनी स्पत छिपाओ जब तक वह तुम्हें उधर की सेना तक न ले आए, और यहाँ फिर से कि मैं आराम कर सकूं आश्वासन दिया, चाहे आपकी सेना मित्र हो या शत्रु। टिटेनियस मैं एक विचार के साथ ही सही फिर से यहाँ आऊंगा। बाहर निकलना कैसियस, जाओ पिंडारस, उस पहाड़ी पर ऊंचे चढ़ जाओ। मेरी दृष्टि सदैव घनी थी। टिटेनियस का सम्मान करें और मुझे बताओ कि तुमने इस क्षेत्र के बारे में क्या नोट किया है। पिंडारस पहाड़ी पर चढ़ता है। इस दिन मैंने पहली बार सांस ली। समय आ गया है और जहां से मैंने आरंभ किया था वहीं पर मैं समाप्त करूंगा। मेरा जीवन उसके कंपास से चलता है। सिर राह क्या खबर है? पिंडारस ऊपर ही मेरे प्रभु। कैसियस क्या खबर है? पेज 68 पिंडारस ऊपर टिटेनियस चारों ओर से घिरा हुआ है, घुड़सवारों के साथ जो उसे आगे बढ़ाते हैं, फिर भी वह आगे बढ़ता है। अब वे लगभग उस पर हैं। अब टिटेनियस, अब कुछ रोशनी। ओह, वह भी रोशनी करता है। वह टैन है। चिल्लाना और हॉक वे खुशी से चिल्लाते हैं। कैसियस नीचे आओ अब और मत देखो। हे, मैं इतना काय हूँ कि इतने लंबे समय तक जीवित रहूंगा, मेरे चेहरे से पहले मेरे सबसे अच्छे दोस्त को देखने के लिए। पिंडारस उतरता है। यहाँ आओ सिराह। पार्थिया में मैंने तुझे बंदी बना लिया और तब मैंने तुझसे तेरे प्राण की रक्षा की शपथ खाई कि जो कुछ भी मैंने तुझसे कहा वह करो। आपको इसका प्रयास करना चाहिए। अब आओ, अपनी शपथ पूरी करो। अब स्वतंत्र मनुष्य बनो और इस अच्छी तलवार से, वह सीज़र की अंतड़ियों में दौड़ गया, इस छाती को खोजो। उत्तर देने के लिए मत खड़े रहो। यहाँ तुम मूठ ले लो, और जब मेरा चेहरा ढका हुआ होता है जैसा कि अभी है, तू तलवार चला। पिंडारस ने उसे चाकू मार दिया। सीज़र, तुमने बदला लिया है उस तलवार से भी जिसने तुम्हें मार डाला। मर जाता है पिंडारस तो मैं स्वतंत्र हूँ, फिर भी ऐसा नहीं होता। दर्स्ट मैंने अपनी इच्छा पूरी की है। हे कैसियस, पिंडारस इस देश से बहुत दूर भागेंगे जहाँ कभी भी रोमन उस पर ध्यान नहीं देगा। बाहर निकलना टिटेनियस को पुनः दर्ज करे मेसाला के साथ। मेसाला ये केवल परिवर्तन है। टिटेनियस ऑक्टेवियस के लिए कुलीन ब्रूट्स की शक्ति द्वारा उखाड़ फेंका गया, जैसा कि कैसियस के दिग्गज एंटनी द्वारा है। टिटेनियस, इन खबरों से कैसियस को बहुत आराम मिलेगा। मेसाला, तुमने उसे कहाँ छोड़ा? टिटेनियस, सब निराश। पिंडारुस के साथ उसका बंधुआ इस पहाड़ी पर। मेसाला,
क्या ऐसा नहीं है कि वह जमीन पर पड़ा है? टिटेनियस, वह जीवितों की तरह झूठ नहीं बोलता। ऐ मेरे दिल में साला, क्या वह नहीं है? पृष्ठ -69। टिटेनियस, नहीं, ये वह था में साला, लेकिन कैसियस अब नहीं रहा। हे डूबते सूरज, जैसे तुम आज रात अपनी लाल किरणों में डूबोगे, तो उसके लाल रक्त में कैसियस का दिन निर्धारित है। रोम का सूर्यास्त हो गया, हमारा दिन चला गया। बादल, ओस और खतरे आते हैं, हमारे कर्म हो गए। मेरी सफलता के प्रति अविश्वास ने ये कार्य किया है। में साला, अच्छी सफलता के अविश्वास ने ये काम किया है। हे घृणित त्रुटि, उदासी के बच्चे, तू मनुष्यों के योग्य विचार क्यों दिखाता है? वे चीजें जो नहीं हैं। हे त्रुटि, जल्द ही कल्पना की गई, आपका जन्म कभी भी सुखी नहीं होता, लेकिन उस माँ को मार डालो जिसने तुम्हें जन्म दिया। टिटेनियस, क्या पिंडरस, तुम कहाँ हो पिंडरस? में साला, जब तक मैं मिलने जाऊं। टिटेनियस, उसकी तलाश करो महान ब्रूट्स। इस रिपोर्ट को आगे बढ़ाते हुए उसके कानों में, मैं इसे जोर से दबाते हुए कह सकता हूँ, छेदने के लिए स्टील और डार्ट्स को जहर दिया जाता है। ब्रूट्स के कानों के लिए उतना ही स्वागत होगा इस नज़ारे की खबर के तौर पर। टिटेनियस, हेलो यू मेसाला, और मैं कुछ समय के लिए पिंडारस की तलाश करूंगा। मेसाला से बाहर निकलें। तुमने मुझे आगे क्यों भेजा, बहादुर कैसियस? क्या मैं तुम्हारे दोस्तों से नहीं मिला और उन्होंने नहीं किया मेरी भौहों पर विजय की यह पुष्पमाला पहनाओ और बोली मुझे ये तुम्हें दे दो? क्या तूने उनकी चिल्लाहट नहीं सुनी? अफसोस, तुमने हर बात का गलत मतलब निकाला है। परंतु थाम लो, इस माला को अपने माथे पर ले लो। आपके ब्रूट्स ने मुझसे कहा कि मैं इसे तुम्हें दे दूं, और मैं उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। ब्रूट्स, तुरंत आओ और देखो मैं कैयस कैसियस को कैसा मानता था। आपकी अनुमति से, देवताओं, ये रोमन का हिस्सा है। आओ, कैसियस की तलवार और टिटेनियस का दिल ढूंढो। खुद को मारना अलार्म। ब्रूट्स, कैटो, स्ट्रैटो, वोलुमनियस के साथ मेसाला में पुनः प्रवेश करें और ल्यूसिलियस। ब्रूट्स, कहाँ मेसाला? उसका शरीर पड़ा है। मेसाला, लो उधर, और टिटेनियस इसका शोक मना रहा है। ब्रूट्स, टिटेनियस का चेहरा ऊपर की ओर है। काटो, वह मारा गया है। पेज 70। ब्रूट्स, हे जूलियस सीजर, तुम अभी भी शक्तिशाली हो। तेरी आत्मा विदेश में घूमती है और हमारी तलवारें घुमाती है हमारे अपने उच्च अंतड़ियों में। कम अलार्म काटो, बहादुर टिटेनियस। देखो, क्या उसने कैसियस को मृत घोषित नहीं कर दिया है? ब्रूट्स, क्या अभी भी 2 रोमवासी ऐसे जी रहे हैं? सभी रोमनों में से अंतिम, तुम्हारा भला हो। यह असंभव है कि कभी रोम अपने साथी को प्रजनन करना चाहिए। मित्रों, मुझ पर आंसुओं का ऋण अधिक है। इस मरे हुए आदमी को तुम मुझे जितना भुगतान करते देखोगे। मैं समय ढूंढूंगा कैसियस, मैं समय ढूंढूंगा। इसलिए आओ और थेसोस के पास उसका शव भेजो। उनका अंतिम संस्कार हमारे शिविर में नहीं होगा, कहीं इससे हमें असुविधा न हो। ल्यूसिलियस, आओ और आओ। युवा किटो, हमें मैदान में जाने दो। लेबियो और फ्लेवियस, हमारी लड़ाई निर्धारित करें। 3 बजे हैं, और रोमियो, अभी भी रात है, हम दूसरी लड़ाई में भाग्य आजमाएंगे। कार्यकारी दृश्य -4 मैदान का दूसरा भाग। अलार्म, युद्ध में प्रवेश करो। दोनों सेनाओं के सैनिक, फिर ब्रूट्स, केटो, ल्यूसिलियस और अन्य ब्रूट्स, फिर भी देशवासियों, हे, फिर भी अपना सिर ऊंचा करो। काटो, हरामी क्या नहीं करता? मेरे साथ कौन जाएगा? मैं क्षेत्र के बारे में अपना नाम घोषित करूंगा। मैं मार्कस केटो का बेटा हूँ, हो अत्याचारियों का शत्रु और मेरे देश का मित्र। मैं मार्कस केटो का बेटा हूँ, हो ब्रूट्स, और मैं ब्रूट्स हूँ। मार्कस ब्रूट्स, मैं ब्रूट्स, मेरे देश का मित्र। मुझे ब्रूट्स के लिए जानो। बाहर निकलना। ल्यूसिलियस, हे युवा और कुलीन केटो, क्या आप नीचे हैं? क्यों? अब तू टिटेनियस की तरह बहादुरी से मर रहा है, और केटो का बेटा होने के नाते सम्मानित किया जा सकता है। प्रथम सैनिक, उपज दो, या तुम मर जाओगे। ल्यूसिलियस, केवल मैं मरने के लिए तैयार हूँ। इतना कुछ है कि तुम मुझे सीधे मार डालोगे। पैसे की पेशकश। ब्रूट्स को मार डालो और उसकी मृत्यु पर सम्मान पाओ।
पेज 71 प्रथम सैनिक, हम नहीं चाहिए। एक नेक कैदी, दूसरा सिपाही, कम रखो। एंटनी से कहो, ब्रूट्स द एन है। प्रथम सैनिक, मैं खबर बताऊंगा। यहाँ जनरल आता है। एंटनी दर्ज करें, ब्रूट्स द एन है, ब्रूट्स द एन है, मेरे प्रभु। एंटोनी, कहाँ है वह? ल्यूसिलियस, सुरक्षित। एंटनी, ब्रूट्स काफी सुरक्षित है। मैं तुम्हें आश्वस्त करने का साहस करता हूँ कि कोई शत्रु नहीं कुलीन ब्रूट्स को कभी जीवित पकड़ेंगे। देवताओं ने उसे इतनी बड़ी शर्मिंदगी से बचाया। जब तुम उसे पाओगे, जीवित या मृत, वह ब्रूट्स जैसा, अपने जैसा ही मिलेगा। एंटोनी, ये ब्रूट्स नहीं है मित्र, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, किसी पुरस्कार का मूल्य इससे कम नहीं। इस आदमी को सुरक्षित रखें, उसे सारी दयालुता दें। मेरे पास बल्कि थी ऐसे मनुष्य मेरे शत्रु से भी अधिक मित्र हैं। जारी रखें और देखो ब्रूट्स जीवित है या मृत, और हमें ऑक्टेवियस के तंबू तक खबर पहुंचाओ कैसे हर चीज का संयोग बनता है। कार्यकारी दृश्य -5। मैदान का दूसरा भाग। ब्रूट्स दर्ज करें, डार्डेनियस, क्लिट्स, स्ट्रैटो और वोलुमनियस ब्रूट्स। आओ दोस्तों के गरीब अवशेष, इस चट्टान पर आराम करो। क्लिट्स, स्टेटिलियस ने टॉर्च की रोशनी दिखाए, लेकिन हे प्रभु, वह वापस नहीं आया। वह या तो है या मारा गया है। ब्रूट्स, बैठ जाओ। क्लिट्स, हत्या शब्द है, ये फैशन का एक काम है। हॉक यू। क्लिट्स, फुसफुसाते क्लिट्स, क्या मैं, मेरे स्वामी? नहीं, पूरी दुनिया के लिए नहीं। ब्रूट्स, फिर शांति, कोई शब्द नहीं है। क्लिट्स, बल्कि मैं खुद को मार डालूंगा। ब्रूट्स, हॉक यू। डार्डेनियस, फुसफुसाते डार्डेनियस, क्या मैं ऐसा काम करूंगा? पेज 72 क्लिट्स, हे डार्डेनियस। डार्डेनियस, हे क्लिट्स। क्लिट्स, ब्रूट्स ने आपसे क्या बुरा अनुरोध किया? डार्डेनियस, उसे मारने के लिए। क्लिट्स, देखो, वह ध्यान करता है। क्लिट्स, अब क्या वह महान पात्र दुख से भरा है कि यह उसकी आंखों के सामने भी दौड़ जाता है? ब्रूट्स, यहाँ आओ। अच्छे वोलुमनियस, एक शब्द सूचीबद्ध करें। वोलुमनियस, क्या कहते हैं महाराज? ब्रूट्स, क्यों ये? वोलुमनियस, सीसर का भूत मुझे दिखाई दिया रात में कई बार, एक बार सरदीस में, और ये पिछली रात यहाँ फिलिपी के खेतों में। मैं जानता हूँ कि मेरा समय आ गया है। वोलुमनियस, ऐसा नहीं है महाराज। ब्रूट्स, नहीं, मुझे यकीन है कि यह है। वोलुमनियस, आप दुनिया को देखते हैं। वोलुमनियस, ये कैसे चलती है? हमारे शत्रुओं ने हमें पीट पीट कर गड्ढे में गिरा दिया है। कम अलार्म अपने आप में छलांग लगाना अधिक योग्य है। जब तक वे हमें धक्का न दे, तब तक रुको। अच्छा वोलुमनियस, तुम्हें पता है कि हम दोनों एक साथ स्कूल जाते थे, यहाँ तक कि उसके लिए हमारा पुराना प्यार। मैं प्रे, जब तक मैं उस पर दौड़ूं, तुम मेरी तलवार की मूठ पकड़ लेना। वोलुमनियस, वह किसी मित्र का कार्यालय नहीं है महाराज। अलार्म अभी भी। क्लिट्स, उड़ो उड़ो मेरे प्रभु, यहाँ कोई रुकना नहीं है। ब्रूट्स, आपकी विदाई, और आप। वोलुमनियस, स्ट्रेटो, तुम सोते समय ये सब कर रहे हो, तुम्हें भी अलविदा। स्ट्रेटो, देशवासियों, मेरा हृदय अब भी जीवन भर इस बात से प्रसन्न रहता है, मुझे कोई आदमी नहीं मिला लेकिन वह मेरे प्रति सच्चा था। इस हारे हुए दिन पर मुझे गौरव प्राप्त होगा, ऑक्टेवियस और मार्क एंटनी से भी अधिक इस घृणित विजय से प्राप्त होगा। तो तुरंत तुम्हारा भला करो। ब्रूट्स की जीभ के लिए हाथ ने अपने जीवन का इतिहास लगभग समाप्त कर लिया। रात मेरी आंखों पर टिकी है, मेरी हड्डियां आराम करेगी, उन्हें इस समय तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अलार्म, भीतर चिल्लाओ, उड़ो उड़ो उड़ो। पेज 73 क्लिट्स, उड़ो मेरे स्वामी, उड़ो। ब्रूट्स, इस तरह हम पालन करेंगे। एक्सिएंट क्लिट्स, डार्डेनियस और वोलुमनियस, मैं प्रिय। स्ट्रैटो, तुम अपने प्रभु के पास रहो। तू एक अच्छे सम्मान का साथी है। आपके जीवन में कुछ हद तक सम्मान की भावना रही है। तो मेरी तलवार पकड़ो और अपना मुख फेर लो जबकि मैं उस पर दौड़ता हूँ। क्या तुम ऐसा करोगे? स्ट्रैटो, स्ट्रेटो, पहले मुझे अपना हाथ दो। आपका कल्याण हो मेरे स्वामी। ब्रूट्स, अलविदा। अच्छा स्ट्रैटो, अपनी तलवार पर चलता है। सीजर, अब शांत रहो।
मैंने तुम्हें इतनी अच्छी इच्छा के साथ नहीं मारा। मर जाता है अलार्म। पीछे हटना। ऑक्टेवियस दर्ज करें, एंटनी, मेसाला, ल्यूसिलियस और सेना। ऑक्टेवियस, वह कौन सा आदमी है? मेसाला, मेरे मालिक का आदमी। स्ट्रेटो, तुम्हारा स्वामी कहाँ है? स्ट्रेटो, आप जिस बंधन में हैं उससे मुक्त। मेसाला, विजेता तो उसे जला ही सकते हैं। ब्रूट्स ने केवल स्वयं पर विजय प्राप्त की, और कोई मनुष्य अपनी मृत्यु से आदर नहीं पाता। ल्यूसिलियस, इसलिए ब्रूट्स को ढूंढा जाना चाहिए। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, ब्रूट्स, कि तूने ल्यूसिलियस की बात को सत्य सिद्ध किया है। ऑक्टेवियस, ब्रूट्स ने जो कुछ भी परोसा, मैं उनका मनोरंजन करूंगा। साथ ही, क्या आप मुझे अपना समय देंगे? स्ट्रेटो, आए, अगर मेसाला तुम्हारे मुकाबले मुझे तरजीह देगा। ऑक्टेवियस, ऐसा करो। अच्छा मेसाला। मेसाला, मेरे स्वामी स्ट्रेटो की मृत्यु कैसे हुई? स्ट्रेटो, मैंने तलवार पकड़ रखी थी और वह उस पर चला। मेसाला, ऑक्टेवियस, फिर उसे अपने पीछे ले जाओ, इसने मेरे स्वामी की नवीनतम सेवा की। एंटोनी, यह उन सभी में सबसे महान रोमन था। सभी षड्यंत्रकारी केवल उसे ही बचाते हैं, ऐसा उन्होंने महान सीजर से ईर्ष्या करके किया। पेज 74। वह केवल एक सामान्य ईमानदार विचार में और सभी के लिए सामान्य अच्छा उनमें से एक बनाया। उनका जीवन सौम्य और तत्वपूर्ण था, उसमें इतना घुल मिल गया कि प्रकृति खड़ी हो जाए और सारी दुनिया से कहो, यह एक आदमी था। ऑक्टेवियस, आइए हम उसके गुणों के अनुसार उसका उपयोग करें, पूरे सम्मान और संस्कार के साथ दफनाना। आज रात उसकी हड्डियां मेरे तंबू में पड़ी रहेंगी। एक सैनिक की तरह सम्मान पूर्वक आदेश दिया। इसलिए मैदान को विश्राम के लिए बुलाओ और चलो दूर, इस खुशी के दिन की महिमा को साझा करने के लिए। कार्यकारी इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।